الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کا درس کا جو عنوان ہے وہ دین اور اس کے اہم اصول ہے، جس کے متعلق پچھلے ہفتے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ پر گفتگو کیا گیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جو اہم اصول ہے اس پر گفتگو کیا جائے۔ پچھلے درس میں ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اہم پوائنٹس پر گفتگو کیے ہیں وہ یہ تھا کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کو ماننا، ایمان لانا اور شریعت الہیہ پر چلنا، اور یہ دین بنانے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین انسانوں کے پاس نبیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کا شروعات آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اور یہ دین اب قیامت تک چلے گا، اور جس انسان کو بھی نجات چاہیے تو اسی دین کے حساب سے اس کو چلنا ہوگا۔ دین کے اہم اصول میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا کہ وحی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور وحی کی اتباع کرنا ہے۔ آج ہم لوگ اس بات پر غور کریں گے کہ وحی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل کرتا ہے وہ قرآن و سنت کے اندر میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اسی کے حساب سے عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اسی کے حساب سے چلانا دین کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی دین ڈھونڈتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو آج کا اہم اصول ہے کہ وحی جو ہے یہ قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ تو سورہ نساء کے اندر میں آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت نازل کیا ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دیا کہ وہ سب کچھ جو دین کے متعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی چیز سکھاتا ہے، کوئی میسج بھیجتا ہے انسانوں کے پاس، اسی کا نام وحی ہے۔ تو وحی کے اندر میں قرآن بھی شامل ہو گیا اور حدیث بھی شامل ہو گیا، دونوں وحی ہے۔ مگر دونوں میں ایک چیز
فرق ہے. حکم کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں مثل ہے، ایک طرح کا ہے. یعنی قرآن میں جیسا حکم ہے، یعنی قرآن میں کوئی چیز اگر حرام ہے اور حدیث کے اندر میں کوئی چیز حرام ہے تو حکم کے اعتبار سے دونوں ایکول ہے. تو حکم کے اعتبار سے قرآن اور سنت دونوں آپ کا ایکول پوزیشن رکھتا ہے، مگر اس کے اندر میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن کے اندر میں اور حدیث کے اندر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا میننگ، اس کا لفظ سب اللہ کے طرف سے، اسی لیے اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر میں جو احکام ہے، حکم ہے، وہ بھی اللہ کے طرف سے، اور جو لفظ ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے. تو یہ وہی جو ہے قرآن کا شکل، اس میں دونوں اللہ کے طرف سے. مگر حدیث وہی جو ہے یہ اس کا احکام اللہ کے طرف سے ہے، اس کا لفظ اللہ کے طرف سے نہیں. تو لفظ اگر قولی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول کے ذریعے بیان کر رہے ہیں تو لفظ تو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس میں جو حکم ہے وہ کدھر سے ہے؟ اللہ کے طرف سے. یہ ڈیفرنس ہے. یا کوئی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس عمل کو صحابہ دیکھ کر اپنے لفظ میں بیان کرتے ہیں، تو عمل جو ہے وہ تو اللہ کے طرف سے ہے، مگر اس کو بیان کرنے کا جو لفظ ہے وہ کس کے طرف سے ہو گیا؟ صحابہ کے طرف سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ جو ہے وہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کے طرف سے ہے. تو دونوں میں ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا؟ دونوں وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دونوں کے اندر میں جو حکم ہے وہ ایکول ہے، اسی لیے دونوں پر عمل کرنا، دونوں کے حساب سے چلنا آپ پر واجب ہے. کلیئر ہے؟ تو قرآن اور حدیث دونوں وہی ہے اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ پہلا دلیل ہے. دوسرا دلیل ہے القیامہ کے اندر میں، سورہ قیامہ کے اندر میں آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک. دیکھیے آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. جیسے جبریل امین آتے تھے جب اور قرآن ان پر نازل کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تیزی سے سوچتے تھے کہ یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنے زبانوں کو تیزی حرکت نہ دیجیے. یقین رکھیے کہ اس کو یاد کرانا، پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. یعنی آپ کے دلوں پر یاد کرا دینا، اس کا حفظ کرا دینا، اس کا پڑھوا دینا وہ ہمارے ذمہ ہے. اس لیے گھبرائیے مت. تو یہ انسانی فطرت ہے جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہیں ایسا نہیں کہ جبریل آئے ہیں اب بتا کے چل جائے، ہم بھول گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی وضاحت کر دیا کہ اس کا یاد کرانا، اس کو پڑھوانا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے. آپ گھبرائیے نہیں. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. اب دیکھیں یہاں پر ہم پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے یہ کلام اللہ کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جب اسے پڑھ لیں، جب کہ پڑھ کون رہا ہے؟ جبریل لے کر وہی آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں جبریل، مگر چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. مانے جب وہ کر لیا جائے تو پیچھے سے آپ پڑھیے. تو یہ ایک اسلوب ہے کہ اگر آپ کسی استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں تو وہ جب اپنی بات ختم کر لے تب آپ اس کو بولیے یا کچھ کریے. پھر اس کی وجاہت بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں اس آیت کے بیان کر دیا کہ اس کا وجاہت، یعنی جو قرآن کے اندر میں احکام اتارا جا رہا ہے اس کا ایکسپلینیشن، اس کا وجاہت، اس کا ڈسکرپشن، یہ ساری چیزیں کس کے ذمہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے، اور اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے. یعنی قرآن کا آیت کا ڈسکرپشن، قرآن کا آیت کا ایکسپلینیشن، یہی حدیث ہے. یہ بھی کس کا ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت کو بھی نازل کرتا ہے اور قرآن کو بھی نازل کیا ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے آیا ہے.
इसका वजाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नजम के अंदर में बयान फरमाया है। देखिए, और न वो अपने ख्वाहिश से कोई बात करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि और न वो अपने ख्वाहिश से कोई बात करते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जी से, अपने ख्वाहिश से दीन के अंदर में कोई भी बात नहीं करते हैं, वो सब वही होता है तभी बयान करते हैं। तो इन आयतों से, ये कुरान की कुछ आयतों से ये वजाहत हो गया कि वही नाम है कुरान हदीस का, और कुरान हदीस में ही वही हिफाजत है, और वही के जरिए ही दीन आता है। तो दीन भी कहां पर हिफाजत हो गया? कुरान हदीस में। तो कुरान हदीस के अंदर में जो चीज है वही दीन है, और कुरान हदीस में अगर कोई चीज नहीं है वो दीन नहीं हो सकता। एकदम बैठा लीजिए कि कुरान हदीस के अंदर में जो चीज है वही दीन है, और जो चीज कुरान हदीस में नहीं है वो दीन नहीं हो सकता है। और हमको चलना किस पर है? दीन पर चलना है। अगर अपने मर्जी से चलना रहता तो नबी के आने की क्या जरूरत है? नबी की जरूरत है? नहीं जरूरत है। मगर नबी आए हैं दीन लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और उसी दीन पर हमको चलना है। अब आइए कुछ हदीस के अंदर में देखते हैं कि इसका वजाहत है नहीं, कि कुरान और हदीस दोनों अल्लाह की तरफ से है कि नहीं। इसका हदीस के अंदर में भी वजाहत है। देखिए, हदीस ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 4604 नंबर हदीस। हजरत मुकाद्दिम बिन मादी कुर्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मुझे कुरान के साथ इस जैसी एक और चीज भी दी गई है। अनकरीब ऐसा होगा कि एक पेट भरा आदमी अपने तख्त या दीवान पर बैठा कहेगा कि इस कुरान को अख्तियार करो, जो इसमें हलाल है उसे हलाल जानो, और जो इसमें हराम है उसे हराम समझो। खबरदार, तुम्हारे लिए पालतू गधे और निस्दार दरिंदे ये हराम है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस हदीस के अंदर में वजाहत फरमाया कि कुरान के मिस्ल एक और चीज भी दी गई है। मिस्ल मतलब सेम, हुक्म के एतबार से दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको दिया गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी वजाहत किया कि एक वक्त आएगा कि एक आदमी बैठा होगा दीवान पर और कहेगा कि हमको कुरान ही काफी है। कुरान में जो हम हलाल देखेंगे उसी को मानेंगे, कुरान में जो हराम देखेंगे उसी को मानेंगे, और तीसरा कुछ नहीं मानेंगे। बात समझ में आई बात? तो अब शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवर जो है, ये कुरान में इसको हराम नहीं लिखा गया। ये कुरान में आपको नहीं मिलेगा। कुरान में सूअर का गोश्त मिल जाएगा, मुर्दार मिल जाएगा, मगर ये चीज कहां पर हलाल हुआ है भाई? हदीस में। इसी हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि जानवर जो है दो किस्म का है। एक जानवर ऐसा होता है जिसका यहाँ टिथ जो है कैनाइन टिथ, जो इंसान को भी होता है, और जो भी चीड़ फाड़ खाने वाला जानवर होता है उसको कैनाइन टिथ होता है, नुकीला दांत। तो वो नुकीला दांत जिन जानवरों को है उसको हराम किया गया। अच्छा, कुरान के अंदर में ये भी वजाहत किया गया कि मुर्दार हराम है, मगर हम लोग मछली खाते हैं मुर्दार। ये कैसे खाते हैं? तो ये कहां पर इसका वजाहत है? इसका हदीस के अंदर में वजाहत है। तो इस हदीस से ये वजह हो गया क्लियर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत कर दिया कि हमको कुरान भी दिया गया है, और इसका मिक्स एक चीज दिया गया है जिसको हदीस बोलते हैं, जिसको सुन्नत बोलते हैं। तो कुरान और हदीस दोनों के अंदर में जो चीजें हैं वो दोनों पर आपको अमल करना है, ये दोनों दीन कहलाता है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर में 4605 में एक और हदीस है कि हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज ऐसा ना हो कि मैं तुम में से किसी को पाऊं कि वो अपने तख्त या दीवान पर बैठा हो और उसके पास मेरे अहकाम में से कोई हुक्म पहुंचे
जिसका मैंने हुक्म दिया है और उससे मना किया हो तो वो कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं, हम तो किताबुल्लाह में जो पाएंगे उस पर अमल करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया कि ऐसा आदमी आएगा, मगर हरगिज आपको उसकी बातों को नहीं मानना है। तो इन बातों से वजाहत हो गया कि कुरान के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो हदीस है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया, एक्सप्लेनेशन किया, ये भी कहां से है? ये अल्लाह के जानिब से है और अल्लाह के तरफ से है। अब एक और हदीस देखिए, बुखारी शरीफ का रवायत है ये। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन खालिद ज़ुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक देहाती आया और अर्ज किया, एक देहाती आता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला कर दीजिए। वो देहाती आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि हम लोगों के दरमियान जो फैसला आप कीजिएगा, किससे कीजिएगा? किताबुल्लाह से, अल्लाह की किताब से फैसला कर दीजिए। दूसरे फरीक ने भी यही कहा कि उसने सच कहा, आप हमारा फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दीजिए। दोनों फरीक इस बात पर एग्री है कि फैसला जो हमारा करना है, किससे करना है? किताबुल्लाह से करना है। देहाती ने कहा, अब देहाती अपना डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा है। देहाती ने कहा कि मेरा लड़का इसके यहाँ मजदूर था, इस आदमी के यहाँ मेरा लड़का क्या था? मजदूर था। फिर उसने उसके बीवी से जना किया, वो मजदूर था, उसके बीवी से उसका जना किया। कौम ने कहा कि तुम्हारे लड़के को रजम किया जाएगा, लेकिन मैंने अपने लड़के के लिए इस रजम के बदले में 100 बकरियां और 1 बादी दे दी। कौम के लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है वो जना किया है, इसलिए उसको रजम किया जाएगा, पत्थर से मारकर उसको डेथ कर दिया जाएगा, रजम। तो इन्होंने बोला कि रजम छोड़ दीजिए, आप उसका मुआवजा ले लीजिए। तो मुआवजा में कितना बकरियां दिया? 100 बकरियां और 1 बादी मुआवजे में दे दिया। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए। तो इल्म वालों ने उनको बताया कि तुम्हारे लड़के के लिए अब क्या करना है भाई? तो 100 कोड़ा लगेगा और 2 साल के लिए मुल्क बदर होगा। ये इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी तुम्हारा मुआवजा वगैरह से काम नहीं चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फैसला किताबुल्लाह से ही करूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत किया कि मैं जो फैसला करूंगा तुम्हारा किससे करूंगा? किताबुल्लाह से। बांदी और बकरियां तो तुम्ही को वापस लौटा दी जाएगी, यानी जो तुम बांदी और बकरियां जो दिए हो उसके मुआवजे में वो क्या कर दिया जाएगा? तुमको लौटा दिया जाएगा। अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाए, और तुम्हारे लड़के को कितना कोड़ा लगेगा? 100 कोड़ा, क्योंकि वो लड़का कुंवारा था, कुंवारा के लिए 100 कोड़ा है, और जो शादीशुदा है उसके लिए रजम है, ठीक है। और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा, और 1 साल के लिए उसको मुल्क से बदर किया जाएगा, मुल्क को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अनीस तुम इस औरत के घर जाओ और उसे रजम कर दो। चुनांचे अनीस गए और रजम कर दिया गया। अब कुरान मजीद के अंदर में आपको रजम का और ये 100 कोड़ा का नहीं मिलेगा, और मुल्क बदर भी नहीं मिलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम किताबुल्लाह से फैसला करेंगे। इससे क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर किताबुल्लाह मतलब वही, और वो भी किताबुल्लाह के मतलब वही समझ रहा है, यानी अल्लाह का जो अहकाम उतर रहा है उसके रोशनी में फैसला कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि मैं तुमको उसी की रोशनी में फैसला करूंगा। तो हमारे पास जो दीन महफूज होकर मौजूद है, एक कुरान के शक्ल में और एक हदीस के शक्ल में, ये दोनों अल्लाह के जानिब से है, और इस दोनों को हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिया है, और ये क़यामत तक हिफाजत रहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर में एक हदीस बयान किया कि लोगों, मैं तुम लोगों के पास 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक अपनी सुन्नत। जो लोग इसको पकड़ा होगा हरगिज गुमराह नहीं होगा,
और ये दोनों उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक मैं हौज पर ना आ जाऊं। यानी क़यामत के दिन हौज कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे पानी पिलाने के लिए, उस वक्त तक ये दोनों साथ साथ चलेगा। क्या मतलब हुआ कि कुरान और हदीस दोनों हिफाजत में रहेगा और निजात का भी जरिया यही रहेगा, और कुरान हदीस ही वही है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो यहां पर इस नुक्ते के अंदर में, इस उसूल के अंदर में हम लोगों ने जाना कि वही नाम है कुरान हदीस का, और कुरान हदीस दोनों पर अमल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और दीन कुरान हदीस में ही है, और कुरान हदीस से हटकर कोई भी चीज कोई बयान करे वो दीन नहीं हो सकता है। इसलिए कि दीन दुनिया में बनता ही नहीं है, दीन तो अर्श पर बनता है और अर्श से दुनिया के अंदर में नाजिल होता है। इसलिए हम लोग दीन अगर ढूंढना है तो आपको कहां ढूंढना है जी? कुरान में ढूंढना है और हदीस में ढूंढना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कुरान हदीस का पैरवी, कुरान हदीस पर अमल आपको कैसे करना है। क्या हम अपने मन से कुरान हदीस पढ़े अपने हिसाब से अमल करने लगे? आप अपने मन से पढ़े अपने हिसाब से अमल करने लगे, वो अपने मन से पढ़े अपने, ऐसा है नहीं। तो कुरान हदीस को कैसे अमल करना है इसका भी वजाहत दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो हमारा नेक्स्ट उसूल है कि कुरान हदीस का पैरवी जो करना है वो सहाबा के समझ के हिसाब से करना है। यानी सहाबा जिस तरीका से कुरान हदीस को समझे और जिस तरीका से कुरान हदीस पर अमल करें, हम लोगों को भी उसी तरीका से कुरान हदीस को समझना है और उसी के हिसाब से अमल करना है। ये नुक्ता हमेशा याद रखिए। आदमी एक सेकंड के अंदर में वजाहत करने लगता है कि भाई कुरान में आया है कि जब कुरान किरात किया जाए तो मुक्तदी किरात मत करे, सुने। इसलिए जब कुरान किया जाए, तिलावत किया जाए तो सुनने का हुक्म आया है। तो क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? ये सहाबा को नहीं पता था? ये सबको पता है ना। जो आप अभी बयान कर रहे हैं ये सब पता है, और उसके बावजूद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा जा रहा है तो कि हम लोग जब इमाम के पीछे हो तब क्या करें? तो अबू हुरैरा कर रहे हैं पढ़ो फी नफ्सी, आपको पढ़ना है। तो उनके पास ये कुरान का आयत भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज पढ़ाते हैं, जहरी नमाज है, और उसके बाद से नमाज से फारिग होकर कहते हैं क्या तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो? तो लोग कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। तो सूरह फातिहा पढ़ो, इसके अलावा मत पढ़ो। यानी जहां पर नहीं पढ़ने का जिक्र आएगा वो सब इसके अलावा का बात हो रही है। जहां पर यह आ रहा है कि इमाम का किरात वो मुक्तदी के किरात है, वो सब उसके अलावा वाला किरात के बारे में बात हो रही है। एक जगह वजाहत हो जाए तो फिर, तो इसीलिए हम लोग को समझ कहां से लेना है? इसे कुरान और हदीस सहाबा के फहम के हिसाब से लेना है। उसी तरीका से देखिए, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में रफुल यदैन को मनसूख कर दिए थे, ये भी बयान किया जाता है। मुस्लिम शरीफ का रवायत पेश किया जाता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में, अबू दाऊद शरीफ के अंदर में 10 सहाबा की जमात में डिस्कशन हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे, और उन्होंने उसमें वजाहत के साथ बयान किया कि रुकू में जाते, रुकू से उठते, 2 रकात पर रफुल यदैन करते थे। सब सहाबा ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ते थे, और ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने की बात की है। तो इसीलिए हमको अपना जो फहम है अपने दिमाग से नहीं लगाना है। किसके दिमाग से चलना है? सहाबा के फहम के हिसाब से चलना है। तो कुरान हदीस पर जो पैरवी करेंगे, अमल करेंगे, वो कैसे करेंगे? सहाबा के हिसाब से करेंगे। दलील क्या है इसका? तो सूरह बकरा आयत नंबर 137 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाए। तुम जैसा किनसे कहा जा रहा है? सहाबा के मुतालिक कहा रहा है कि अगर ये लोग सहाबा के जैसा ईमान लाएंगे तब हिदायत पाएंगे, अगर मुंह मोड़े तो वो सही इख्तलाफ में है।
और सहाबा के तर्ज अमल को जैसे ही आप छोड़िएगा, आप शरीर इख्तलाफ में चले जाइए। और यही उम्मत के साथ हुआ है कि सहाबा का तर्ज अमल को छोड़ा गया और हर लोग अपने अपने के हिसाब से दीन को समझने लगे और अमल करने लगे। अब देखिए हजार चीजें निकल चुकी हैं। अब दरूद शरीफ को ले लीजिए, जब कुरान के अंदर में आयत नाजिल हुई कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद व सलाम भेजो। साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए कि दरूद के क्या कलमात होगा, हम दरूद कैसे भेजे, हम सलाम कैसे भेजे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि दरूद आपको कैसे भेजना है, सलाम कैसे भेजना है, वो सारी चीजें हदीस के अंदर मौजूद है। साहबा उसी तरह से सीखे, जहां जहां कहा गया वहां वहां पढ़े। और आज अजान से पहले दरूद पढ़ो, और दरूद कौन भाई, मेड इन इंडिया, इंडिया में दरूद बन गया, उसको पढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं साबित कर रहे हैं कि दीन बनाने का अख्तियार आपके हाथ में है और सहाबा से ज्यादा आप इल्म रखते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमको इसीलिए कहा जा रहा है कि शरीर इख्तलाफ में चले जाइएगा। अगर सहाबा के तर्ज अमल को छोड़िएगा तो शरीर इख्तलाफ में जाएगा। अल्लाह ताला उनसे अनकरीब आपकी किफायत करेगा और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह बकरा के अंदर में उसका वजाहत है। सूरह निसा के अंदर में आयत नंबर 115 में भी वजाहत है, जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाजा हो जाने के बाद, हक वाजा हो गया, मसाइल क्लियर हो गया, रसूल से बात क्लियर हो गया। यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाजा हो जाने के बाद रसूल के मुखालिफत करे, रसूल का मुखालिफत करे, हदीस बयान कर दिया जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा है, उसके बाद रसूल से मुखालिफत करे कोई, और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते की पैरवी करे। यहां पर ये मुसलमान कौन है? जब ये आयत उतर रहा है तो पहला मुसलमान का जमात कौन है? सहाबा है। तो यहाँ पर सहाबा से मुखातिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है कि हक वाजा हो जाने के बाद जो लोग रसूल से मुखालिफत करें और सहाबा के रास्ता को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करे, तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो जाना चाहते हैं। तो हम उसको उधर ही फेर देंगे जिधर वो जाना चाहते हैं, और हम उन्हें जहन्नम में डालेंगे और बहुत बुरी ठिकाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर में वजाहत के साथ बयान किया कि जो लोग सहाबा का रास्ता को छोड़ देगा वो लोग गुमराही के रास्ते पर चला जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें ज्यादा ढील दे देगा, और वो ढील की वजह से आप दीन से बाहर हो जाएंगे और अल्लाह ताला का राम जहन्नम में डालेंगे, बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये रहा कुरान का दो आयत, एक सूरह बकरा का, सूरह निसा का, जिसमें सहाबा को स्टैंडर्ड बनाया गया है, यानी सहाबा के हिसाब से ही कुरान हदीस को आपको समझना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और नुकता यहां पर आप लोग समझ लें कि कोई भी चीज पढ़ने और समझने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आपको किताबें ला दिया जाए और आप किताब पढ़ते हैं और उससे बात सीख जाते हैं, और एक होता है कि नहीं, किताब के शक्ल में आपको नहीं दिया जाएगा, आपके साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और उस प्रैक्टिकल के जरिए सिखाया जाएगा। तो अभी का मॉडर्न जो साइंस की दुनिया है, इसमें पढ़ाई का क्या सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो उसको थ्योरी भी है और उसका प्रैक्टिकल भी है। तो जो आदमी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छा से पढ़ लेता है उसका सब्जेक्ट पर क्या होता है, अच्छा कमांड हो जाता है। तो आज का मॉडर्न दौर में ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का कंसेप्ट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज से 1400 बरस पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दीन समझाने का तरीका लाया, तो यही प्रैक्टिकल और थ्योरी मेथड लाया गया। उस जमाने में कुरान उतारा गया, ये क्या था? ये